So the main study today is feeling frequencies. Feeling frequency is ये वाला जो chapter है, it comes from the Power book. I have taken this chapter. I don't know who else who was there, but I'm again repeating it because it's a very important chapter. हम इतना कुछ manifest करना चाहते हैं क्योंकि but manifest क्यों नहीं कर पाते हैं या मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका डेस्टिनी आपके चॉइस पे है। आप क्या चूज कर रहे हो? आप सैडनेस चूज कर रहे हो, जजमेंट चूज कर रहे हो, या फिर आप लव चूज कर रहे हो? आप जो भी चूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपका डेस्टिनी स्लोली स्लोली मोमेंट टू मोमेंट, हम ना बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं बट मोमेंट टू मोमेंट हम अपना डेस्टिनी बना रहे हैं। Okay, so that's why it's so important to always ask ourselves that what am I choosing right now? Am I choosing, like मेरा जीवन तो ऐसा है, I'm judging my life, I'm thinking about all the bad things that is happening in my life. So what am I choosing? I'm choosing not feelings which are not love. Anything where understand, people who are new, who have not taken these classes before, एक basic मैं चीज आपको बोलती हूँ। Anything you which you are feeling good, any emotion you are feeling good, they are love based emotion. Any emotion, feeling good and also positive and feeling good, as if ऐसा नहीं कि उसका अच्छा हुआ उसका बुरा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। No, it's not a feeling good emotion. It's not a positive emotion. Okay, feeling good emotion is gratitude, joy, feeling happy for somebody else, appreciating something else. All these makes us feel good, right? Remembering my son, how we were spending time, all these good things that we are feeling, they are called love based emotions. And anything that contracts our life, like मेरा जीवन ऐसा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स जो हम लोग सोचते रहते हैं, मेरी सास बुरी है, मेरा बॉस बुरा है, एंड ऑल दिस थिंग्स, जो भी हम ऐसे सोच रहे हैं उसके साथ फीलिंग, एवरी थॉट के साथ रिमेम्बर एक फीलिंग रिलीज हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दीज फीलिंग्स हमारा इमोशंस देखना, दे आर नॉट गुड फीलिंग इमोशंस एंड दे आर कॉल्ड फियर बेस्ड इमोशंस। फियर बेस्ड, इसीलिए ज्यादातर लोग इस वर्ल्ड में फियर बेस्ड इमोशंस में जीते, इसलिए उनको लगता है कि ये अगर नहीं हुआ तो खत्म कहानी, ये अगर नहीं मिला तो खत्म कहानी। ये सब कुछ फियर बेस्ड इमोशन से निकलता है। Love based emotion is trusting life. I know the best. I know the universe is deciding the best for me. जो भी हो रहा है उसको openly मैं accept कर रही हूँ। उतना जब हमारे ऊपर वो trust आ जाता है, then it is again a love based emotion. Okay, तो यहाँ पे आप if you're feeling, so here this author is saying that if you're feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations and events. If you're feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations and events to you. देखो, फियर क्या करता है? फियर हमेशा हमको डराता रहता है, हर चीज में डरते रहते हैं, हर चीज में हमको डरना लगता है। हमको लगता है कि यू नो देन वी विल ऑल्सो, यू विल सी दैट समटाइम्स वी से हमको सिर्फ बुरे ही लोग क्यों मिलते हैं, बिकॉज आप फियरफुल हो। इसीलिए बुरे लोग क्या है, लोग भी क्या है, वो बहुत फियरफुल लोग है, इसीलिए वो ना गलत गलत काम करते रहते हैं आउट ऑफ फियर। सो you are fearful, that's why you are attracting fearful people in your life, fearful situations, fearful events. So but when on the other hand, when whatever you choose, instead of fear, if you choose enthusiasm, you will attract enthusiastic people. Mhm. And situations and events, everything around you will be good. So this is up to you what you choose. Okay, 1 second. Just give me some time. Okay, I think you needed to hear this. This page just popped up and I shared. But this is, yeah. So, choosing things are things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? Hmm? Are you busy in choosing things you love, or you are too busy in judging and labeling things which are bad? ये ठीक नहीं है, boss ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है. So remember, you know
होल डे में मेरा इमोशन काउंट करता है कि मेरा मैनिफेस्टेशन कैसा होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बैठ गई मेडिटेशन में, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बेसिस, बट ऐसा नहीं कि मेडिटेशन मैंने विजुअलाइज किया, वाह मुझे ये जॉब मिल गया, ये हो गया, ये बिजनेस हो गया, और उतर के ही मैं सारा दिन अपने बॉस को क्रिप कर रही हूँ, कंपनी को बोल रही हूँ, जज कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। द मोमेंट आई एम डूइंग, आई एम एनीथिंग आई जज, remember the law says anything you judge, you criticize, you are pushing that away from your life. You want a promotion but you're judging the company, the boss and everything, that means you're pushing that promotion from your life. So remember that it's very important to make sure what am I thinking. एंड चूजिंग के ऊपर है कि हम चूज, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए कपल्स। हाँ, हम कपल दो, कपल एज फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, एंड you are seeing somebody who is very happy in relationship, a couple around you very happy, normal tendency क्या है, देख के बोलना कि देखो ये लोग कितने अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, मेरा वाला तो घूमता ही नहीं है, मुझे दिलाता ही नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, राइट? वी स्टार्ट कंपेयरिंग एंड वी स्टार्ट बीइंग सैड, or we start getting jealous also. These can be the emotions that happen. The moment we are doing it, we are pushing that beautiful, that relationship that can become my reality, I'm pushing that relationship away from my life by being sad. You see a beautiful car, how do you think about it? Whether you think, oh ये गाड़ी देखो कितने अमीर है, इनके पास इतना अच्छा गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, the moment you have done it, you have pushed that car away from your life. So the way of attracting things in your life is to appreciate, वाह वो गाड़ी कितना सुंदर है, वो कपल्स कितने अच्छे लगते हैं, even in Facebook you'll see few people, two kinds of people. Some people, they are watching everything of yours and getting jealous, and there are some people who are really appreciating and saying I'm really enjoying what is happening and everything, so it also how it is, what kind of, so when you are appreciating something happening in somebody's life, you are opening, you are saying this universe को ना yes no मुंह से नहीं समझ में आता है कि यूनिवर्स, मुझे, मैं बहुत सैड हूँ, उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, मैं बहुत सैड हूँ, लेकिन यूनिवर्स तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? तो यूनिवर्स इसमें ऐसा नहीं बोलेगा कि ओ तुम यस बोल रहे हो गाड़ी के लिए तो तुमको गाड़ी चाहिए, यूनिवर्स बोलेगा ओ तुम सैड हो इसका मतलब है तुमको नहीं चाहिए गाड़ी, नो तुम बोल रहे हो नो। So universe understands no and yes only in the language of emotions. It doesn't understand, हम लोग कभी कभी ड्रामेटिक बन जाते हैं भगवान के सामने। हाँ, भगवान के सामने जाके मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान। बट but when you are doing this you are pushing good things from your life, because bhagwan is, the universe doesn't have brain, the universe just understands your emotion. You are saying कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है, यूनिवर्स बोलता है वो तुम्हारे साथ बुरा होता है, तथास्तु और बुरा हो, और बुरा होना चाहिए तुम्हारे साथ। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट ओवरवेट। हम जेलस फील करते हैं किसी को पतला स्लिम एंड ट्रिम देख के, बट व्हाई कांट वी रियली एंजॉय कि वाह कितना सुंदर फिगर है, एंड ऑल्सो आई हैव गेन्ड वेट नाउ। मैं इतनी खुश थी लास्ट के 2-3 हफ्ते, इतना खाना खाया कि 2-3 kgs मेरे बढ़ गए हैं। बट आई वॉज शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस दैट you know my neighbor friend, she always, whenever she sees me, she touches my, वो मेरी कमर को पकड़ती है, पक्का पकड़ के बोलती है कितना स्लिम तुम्हारा कमर है, अगर मेडिटेशन करने से कमर ऐसा स्लिम होता है तो मैं करूंगी, ऐसे करके, this is what she says, and every time she never meditates. I said yes, you can also become slim and trim, and she will always crib, मैं क्यों मोटी हूँ तुम क्यों पतली हो। तो when you think this way, you are not going to get your ideal figure, because you are not appreciating, you are cribbing, you are becoming sad by seeing somebody else in a beautiful figure, so it's so important that you appreciate, it's so important, it's talking about appreciate। किसी भी चीज आपके जीवन में चाहिए, वेट चाहिए, जॉब चाहिए, कार चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, आपका खुद का नहीं है फिर भी किसी और का अच्छा हेल्थ है, तो उसको देख के आप अप्रिशिएट करो।
इतना अप्रिशिएट करो कि आपका हेल्थ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बिकॉज यू नो व्हाट इज द रीजन, द साइंस बिहाइंड इट, इट इज नॉट मम्बो जम्बो. द साइंस बिहाइंड इट इज दैट द उपनिषद सेज दैट अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स. आई एम द यूनिवर्स का मतलब क्या है? आई एम वन, मैं एक ही हूँ. दिस इज ऑल इल्यूजन कि इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास, बट सब कोई एक्चुअली मैं ही हूँ. तो मैं अगर किसी चीज को अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं खुद को भी एक्चुअली अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं खुद को भी वो उसको मेरे जीवन में अट्रैक्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई एम वन, राइट? सो इन द सेम वे व्हेन आई डू द ऑपोजिट थिंग, व्हेन आई एम क्रिटिसाइजिंग समथिंग, that means I'm criticizing myself. When I'm criticizing a person, situation, event, that means I'm criticizing myself. या एंड तो उसके तो मैं, दैट्स व्हाई देयर इज, आई टोल्ड इन द मॉर्निंग दैट देयर 7 एसिन मिरर्स का मैंने जो क्लास लिया था रिलेशनशिप पे, 7 एसिन मिरर्स, उसमें एक वन ऑफ द मिरर वाज जजमेंट. पीपल हु आर ओल्ड दे नो दैट जजमेंट एक ऐसा चीज है, हम जिस भी चीज को जज करते हैं, वही हम बाद में सेम नेचर हमारे में आ जाता है. बिकॉज अ चार्ज द मोमेंट वी, यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड यू नो डिसाइफरिंग दैट, अच्छा ये आदमी बुरा है, मैंने डिसाइफर कर लिया कि ये अच्छा आदमी नहीं है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए. और स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ ये बुरा है, ये बुरी है, ये अच्छी नहीं है, ये है, immediately I'm creating judgments. With that emotion, the a judgment emotion gets stored in my body, and when I am storing the judgment emotion, I will only become, it is just a matter of time, same nature की मैं बन जाऊंगी कुछ दिनों में. दिस इज व्हाट जजमेंट डज, क्रिटिसिज्म डज. और अच्छा कुछ नहीं होता है हमारे जीवन में, दैट्स व्हाट इट इज, बट द ऑथर इज टॉकिंग इन अ सम अदर फैशन, यू नो. लाइक आई रिमेम्बर, यू नो, बहुत साल पहले व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, आई हैड अ फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त थी, अचानक से ना गायब हो गई. उसका हस्बैंड है, 1.5-2 साल तक वो नहीं है, कहीं पे नहीं है. एंड आई वॉज रियली, एवरीबडी वॉज गॉसिपिंग, हैविंग रूमर्स कि उसने हस्बैंड छोड़ दिया, हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, बहुत कुछ ऐसे रूमर्स चल रहे थे. और उस बीच में वो मुझे मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि मैं बार बार ना उसको याद करती थी कि कहाँ होगी. एंड फाइनली आफ्टर 1.5 years she came back, and she just said, very sad story, she had tuberculosis, so her husband didn't want to be with her, and for 1.5 year, 2 years she was away, and all these things hua. And I introduced her to a spiritual practice at that time, and we became very good friends. So जब when we spoke, one day she was saying that, संजुक्ता, मुझे ना जब लोग बहुत चिल्ला के बात करते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के, कोई मैनर्स नहीं है, ऐसे बात करते हैं, गुस्सा करते हैं एवरीथिंग, तो मुझे 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 मैं ना बहुत, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत घिन आती है ऐसे लोगों से, आती थी ऐसे लोगों से, लगता था कि कोई मैनर्स नहीं है, कुछ नहीं है ठीक से बात. एंड बिकॉज शी वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, एंड शी सेड, संजुक्ता, मैं वैसी बन गई हूँ, मैं एग्जैक्टली अपने हस्बैंड के साथ आजकल वैसे चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करती. So this is what, her example, through her own example was telling that, देख, तब मुझे ये साइंस भी नहीं पता था, बहुत साल पहले की बात है. I was in a different kind of spirituality. That was a science, but ये science नहीं पता था मुझे. And she was telling this. So that's why if anything we want to attract, we have to make sure we appreciate. If you remember, there was another author that author का book मैंने share किया था. And there also the author was telling कि आपको abundance आपके अपने जीवन में लाना है, तो दूसरों के जीवन में जो पैसे हैं उनको देख के खुश हो जाइए, अप्रिशिएट कीजिए. And what happened is Ambani's wedding. याद है ना कि कुछ लोग तो बहुत खुश थे, देखने के लिए पागल थे कि अंबानी के वेडिंग, बेटे के वेडिंग में कैसा हो रहा है. और कुछ लोग ऐसे थे कि फिर पैसे इतने उड़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं, कुछ है, माँ बाप नहीं है, पैसों का ऐसे उड़ा. सो व्हेन दीज पीपल आर सेइंग, इन रियलिटी डीप डाउन they are jealous, they are very sad that they don't have money. Okay, and if you tell this kind, if you do not appreciate, you are judging them, you are creeping about them, you are pushing the abundance. शायद उतना नहीं, थोड़ा सा भी उसका 1% भी आपके जीवन में आने का चांसेस था, लेकिन आपने क्रिप किया, जज किया उस आदमी को, उस फैमिली को, आपके जीवन से वो चला गया. So this is how the science of spirituality works, and that's why I said, please join. इसलिए मैंने इसको फिर से लिया है इस क्लास को, क्योंकि ज्यादातर टाइम ना हमारा क्या होता है, दूसरों को जेलस, दूसरों से
जेलस फील करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों से कंपेयर करने में हमारा टाइम चला जाता है। और सोचो कि हम कैसे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अपना जीवन, जो ब्यूटीफुल जीवन हम अपना बनाना चाहते हैं, जेलसी लेके, जज करके, कंपेयर करके क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, वो हम अपने जीवन से वो अबंडेंस, वो रिलेशनशिप, वो हेल्थ पुश आउट कर रहे, पुश इन नहीं कर रहे हैं। ओके, सो देन it talks about, let me see, yeah, this also I spoke. Yes, yes. Acha, another thing what is like, many times we don't believe that we deserve, we don't feel good enough. हम अपना स्टोरी, कुछ कुछ नया कुछ सोचना चाहते हैं अपने जीवन में, राइट? बट सोचने के पहले सोचते हैं मैं डिजर्व करती हूँ, मैं ऐसी रिलेशनशिप डिजर्व करती हूँ, मैं इतने पैसे डिजर्व करती हूँ, और है ना, मैं ना अपना वर्दी नहीं फील करती, वी डोंट फील वर्दी ऑफ रिसीविंग द बेस्ट. सो रिमेम्बर, if we don't feel worthy of anything, it will not come to us. Worth is also, you know, our, आप देख सकते हो अपने जीवन में, आपके जीवन में किसी भी एरिया में, आप रिलेशनशिप देखो, हेल्थ देखो, मनी देखो, जॉब देखो, किसी भी एरिया में आपका जितना भी लेवल है, वो लेवल आपके वर्थ से कंपेयर होता है। आप जितना अपने आप को वर्दी समझते हो, वो उतने लेवल तक ही वो आपके जीवन में आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब आप खुद का वर्थ बढ़ा दोगे, वो अबंडेंस इन दैट एरिया विल इंक्रीज. This is how worth is so connected. Self love is so connected. That's what I share, that love yourself, believe. And why can't we? Because हम अपने आप में, हमें इतने shame है, guilt है, हम अपने आप को पसंद नहीं करते. One of the reason is, बचपन में हमेशा आप देखो, बचपन में पेरेंट्स हम हमेशा हम लोग को क्या करते हैं, the way of showing love, especially last century parents, their way of showing love was through criticism, isn't it? तुम ये ठीक से नहीं करती हो, वो ठीक से नहीं, कभी नहीं बोला कि मेरी बेटी यहाँ पे कितना अच्छा है. मोस्ट ऑफ द टाइम, या इट्स ऑलवेज अबाउट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म. और हमको लगता है क्रिटिसाइज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी, मेरी बच्ची और बेटर हो जाएगी, मेरा बच्चा एकदम महान बन जाएगा. बट इन रियलिटी व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द मोर वी आर क्रिटिसाइजिंग, द मोर वी आर टेलिंग देम, इट्स लाइक अ सेल्फ टॉक, वी आर पुटिंग सेल्फ टॉक इन देम, कि तुम ठीक नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं से ठीक नहीं हो. तो वो गिल्ट एंड शेम हमें हमेशा होता है, कुछ भी चीज में हमको लगता है कि नहीं, ये मैं ठीक नहीं हूं, मैं ऐसे अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छे से ये नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं किसी और को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, या फिर खुद को क्रिटिसाइज करती रहती हूँ, right? So that's why I don't feel worthy. But remember, compost, we are what we are because of this. हम लोग सब एक होते, अगर हम परफेक्ट होते, अगर हम सब परफेक्ट होते हर एरिया में, एक जैसे, बोरिंग नहीं होता लाइफ. We are beautiful because we are unique with our flaws. If you remember, I was sharing, Kajol, she's so ordinary looking, she has nothing in herself, but only thing what she believed is that, she believed that her imperfections make her beautiful. काजोल की ग्रैंडमदर ने उसमें डाल दिया था. एक दिन काजोल की ग्रैंडमदर ने उसको बुलाया और बोला, देख मेरा नाक टेढ़ा है, मेरे गाल ऐसे है, मेरा ये भी ठीक नहीं है. काजोल को ऐसे बोल बोल रही थी उसकी ग्रैंडमदर. फिर बोला कि बट देख, इसकी वजह से ही मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, right? The imperfections of our body, of our face, of our character as well, of our nature as well, make us unique, and we will change. It's not that we are very proud of the negative characters that we are, but we have to accept ourselves completely, believing that I'm much more than this negative character, because मैं तो यूनिवर्स हूँ, राइट? मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स मुझे डिफाइन नहीं करते, मेरे ड्रॉबैक्स, मेरा बैड हैबिट्स मुझे ये डिफाइन नहीं करते हैं. मुझे कौन, डीप डाउन व्हाट एम आई एम अ डिवाइन infinite intelligence, infinite divine love, light. I am that universe. So when I will start believing that I'm much more than this, I will start becoming worthy. Yeah, so then we will start attracting great things in our life. Then very interesting part, and here what he talks about is that this is very, so यहाँ पे, you will see आसपास, maybe your parents, maybe your husband, maybe your spouse or your partner,
किसी ने भी आपको, जब भी आप, वीमेन हैव अ टेंडेंसी टू ड्रीम, वी आर नॉट टू प्रैक्ट, हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिक, ज्यादातर, आई एम नॉट एट ऑल, आई एम वेरी इमोशनल, वेरी ड्रीमी। बचपन से ही मैं बहुत ड्रीमी थी, बहुत सपने, मुझे सपना देखना बहुत अच्छा लगता था। एंड मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल हो। ओके, वो मुझे बोलते थे लॉजिक, लॉजिक में रहो, प्रैक्टिकल होना चाहिए। but I was, I always love to believe in the impossible, love to believe in the magic, but I was made to feel that no, 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 you are wrong, you should believe only what you are seeing. But this author is saying कि real भी तो real नहीं है, ये author बोल रही है, ये the author is answering my answer. शी इज सेइंग कि हम जो इतना प्राउडली बोलते हैं दिस इज रियलिटी, दिस इज प्रैक्टिकल, वो भी तो रियल नहीं है। वो बोल रहे हैं कि यू नो ये हम हमेशा सोचते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, राइट, लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड, मनी लिमिटेड, रिलेशनशिप्स लिमिटेड, हर चीज में हम स्कैरसिटी मोड में रहते हैं, इसलिए भागा दौड़ा करो, फाइट करो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको किसी को उतारना है तभी आप ऊपर जाओगे। You always, that's why coming first is so important for so many people, because we it comes from a fear mentality, thinking that limited resource hai. But the author is saying कि quantum physics, it's not just mumbo jumbo. The science of quantum physics is saying that in this room, wherever you are sitting right now, you are there are infinite parallel universes, parallel realities in right now, wherever you are, infinite, एक दो दस सौ नहीं, आपके ही जीवन का इन्फिनिट और रियलिटीज है आपके जीवन में। यू नो you can choose. Right now you might be unhealthy, right now you might be poor, right now you might be sad, depressed, but there is another reality where you are happy, where you are abundant, where you are healthy, where you have great relationships. So it is just a matter of believing and visualizing and start thinking differently, start believing, creating new affirmations, new self talks, that wow, my life is getting so beautiful, I have such great relationships, or I have so much of abundance. You are thinking you are poor, और एक infinite reality में आप actually billionaire हो, आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका और एक infinite reality है जहां पे आप इतने रिच हो, right? But it's not that there is a gestational period when you start believe. Don't think that it's like magic कि आज से आप बिलीव करने लगे और कल ही वो पैसा दिखेगा, बट आप कंटिन्यूअसली अगर इसी वाइब्रेशन में रहो, कर्मा एक्सपिएट करो थ्रू मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, दैट रियलिटी इज गोइंग टू शो अप वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। आपने देखा है ना योगीज, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट द बुक, द फर्स्ट बुक दैट यू शुड रीड, पीपल हु आर न्यू शुड रीड autobiography of a yogi. I suggest that the first book you should be reading. That book talks about yogis who create magic. There is a yogi जो बिल्कुल खाना ही नहीं खाती है, खाती दो योगीज हैं, दो लेडी योगीज थे जो बिल्कुल खाना नहीं खाती थी। हमको क्या होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, वो बचपन से नहीं खा रही है, बिल्कुल नहीं, पानी भी नहीं पीती है, and that's how she's surviving. So this is how we believe in infinite realities, and we can create that kind of reality in our life. Okay, so then there was another one who did not sleep at all, बिल्कुल सोती नहीं थी, सोते आदमी था, he would not sleep, कभी नहीं, he would not sleep, he created his body in such a way he would not sleep. There was another yogi who could create food coming from nowhere. व्हाट्स हैपनिंग, हमको लगता है कि मैजिक हो रहा है, नहीं, उन्होंने सीख लिया है कि इन्फिनिट रियलिटी है, वहां से मैं ले आ सकता हूँ अपने लिए। अभी यहाँ पे मेरे पास खाना नहीं है, खाना वहां से आ जाएगा, जस्ट मैं विजुअलाइज करूंगा वो आ जाएगा। उनके पास इतना पावर आ गया है कि दे कैन प्ले अराउंड विथ इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्सेस। So I will write the book or maybe I'll share the audio book भी अगर है तो मैं ग्रुप में छोड़ दूंगी। This is what it is talking about. Yeah, then time also, we think time नहीं है, time नहीं है, time नहीं है, but time is also an illusion. See, Albert Einstein says that टाइम को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आपने देखा है जब हम लोग सोते हैं या फिर सॉरी मेडिटेट जब करते हैं, कभी कभी
एक घंटा कर लिया, लेकिन आंख खोले तो देखा एक घंटा हो गया, बट हमें लग रहा है कि 5 ही मिनट हुआ है, हम मेडिटेट कर रहे हैं. सो वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड टाइम व्हेन वी ट्रस्ट दैट वी आर इन द हियर एंड नाउ, इन दिस मोमेंट, डूइंग वट एवर वी आर डूइंग विथ फुल फोकस. टाइम भी एक्सपैंड हो सकता है, बिकॉज टाइम इज इटर्नल. ये लीनियर नहीं है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. ये भी इल्यूजन है कि टाइम का ना, ये भी एक रियलिटी है जो हम माया में घूम रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है. बट इन रियलिटी टाइम इज ऑल्सो एन इल्यूजन. टाइम इज ऑलवेज इन द नाउ एंड इटर्नल. Okay, so this is what, and see, these are all Nobel Prize physicist. जो लोग I will share, ये जो Nobel, he's a Nobel Prize winning quantum physicist. His name is Steven Weinberg, and he says that in our universe we are tuned into the frequency that corresponds to physical reality, but there are infinite number of parallel realities coexisting with us in the same room, although we cannot tune into them. We can tune into them with meditation, with belief and complete trust. Then then again, we believe that, oh my god, I'm solid, you are solid, you are a human being, I'm human being. वो चेयर तो और एक चेयर है, हम सब कुछ अपने आप हिसाब से पूरा बिलीव करते हैं, यही ट्रूथ है और कुछ ट्रूथ नहीं है. यहाँ पे फिर से द ऑथर इज ब्रेकिंग आवर मिथ कि ट्रूथ क्या है. तुम ये जो सॉलिड वाला हार्ड चेयर देख रही हो, ये भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है. सी व्हाट शी इज सेइंग. You can believe the real world is made up of all the solid things you can see and touch, but actually, nothing is solid. The chair you are sitting on right now is a force of moving energy and it's mostly space. So, how real is even your chair? That's what quantum physics says, na? We are all energy and frequency. एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है तो वो भी सॉलिड नहीं है ना, एक चेयर भी सॉलिड नहीं है अगर वो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है. बट बिकॉज ऑफ द विजन, सो मेनी वेज ऑफ सीइंग द थिंग, वी फाइंड इट सॉलिड. सो स्टॉप telling yourself be practical, okay, and start believing in magic. Start trusting that anything can happen if we start believing in it. Yeah. So Abraham Lincoln ka last quote I will share is that he says that to believe in things you can see and touch is no belief at all, but to believe in the unseen is triumph and blessings. जो ऑलरेडी दिख रहा है उसको बिलीव करने में क्या फायदा है, जो नहीं बना है उसको बिलीव करो. दैट इज द ट्रायम्फ. बिकॉज आप जो नहीं बना है उसको भी आप अगर बिलीव कर सकते हो कि ये मेरा हो गया है, दैट इज मैनिफेस्टिंग फॉर योर यू, राइट? Wright brothers, they believed, people were laughing at Wright brothers when they thought there will be some machine which will fly. People were laughing at them. They are crazy people, but they were manifesting, they were visualizing ऐसा कुछ होगा जो उड़ेगा. इसीलिए आज उनकी वजह से हम लोग उड़ रहे हैं, राइट? फोर्ड जो कार इतना हाई एनर्जी वाला जो फोर्ड, Mr. Ford dreamt of a car like this, but all the engineers were saying not possible, not possible, ये possible ही नहीं है ऐसे. Some technique he wanted, and all the engineers were saying not possible, ये हो, it's not possible, but Ford says it's possible. You'll make it, I'm giving you time. वो कुछ महीने बाद आता था, इंजीनियर्स बोलते थे पॉसिबल है ही नहीं, आप क्यों फोर्स कर रहे हो. फोर्ड बोल रहे पॉसिबल है, पॉसिबल है. और फाइनली फोर्ड की वजह से दे वर फाइनली एबल टू फाइंड अ टेक्निक वेयर एग्जैक्टली व्हाट फोर्ड ड्रेम्ट ऑफ अ कार, दैट काइंड ऑफ कार वाज क्रिएटेड. What was happening is just one person's belief that it is possible, and the same thing we can do it for ourselves. Okay, thank you very much everybody. Hope you really, that's why I really wanted, इसीलिए मैंने इसको फिर से इसको क्लास लिया, बिकॉज न्यू ईयर के टाइम में आप लोग नहीं थे. मुझे लगा कि इतना इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट आप मिस कर जाओगे. या, हैव अ ग्रेट डे. सी यू अगेन टुमारो. यस, थैंक यू सो मच विदिशा. सो सी यू अगेन टुमारो. टुमारो इज अ ब्रेथ वर्क, डोंट मिस इट फ्रेंड्स. ब्रेथ वर्क करते करते हम लोग यूज टू हो गए हैं, बट अगर अच्छे से ब्रेथ वर्क करते हैं ना, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. हैव अ ग्रेट नाइट. गुड नाइट. नाइट. हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आज का और कल का दोनों का रिकॉर्डिंग भेज दूंगी. ओके.